Bismillahirrahmanirrahim. Hi guys, I am Zawraman Jamali. This is the night time, 20 past 8 at Sarari. I thank my Allah for the blessings that He has granted over me, and I'm really thankful to my viewers for the love and respect that they have shown towards me. At the start of my video, I would like to request my viewers to subscribe my channel, share my videos, click the button of liking, and put your comments below into the description so that I may know that whether my videos are serving your purposes or not. You know that I have embarked on the task to give some benefit to the candidates who they are appearing in the exam of CCE or CCE, or you call that SPCS, sorry. For that reason, I'm making these videos. I'm trying to help the students, help the candidates, and qualifying that exam, and they can get the job of 17th grade, and they can remember me in their benedictions and prayers. Because you know that I do not demand anything from the side of the students. And one misconception that's developed in the mind of the students is that for that exam English should be different, and for that exam English should be different. No, English should be the same. This is the same subject, and it will be same for all type of exams. Whether you appear in the exam of teaching, or you appear in the exam of Civil Public Service Commission, or you appear in the Federal Public Service Commission exam, or Central Service Commission exam, you appear in any type of exam, you need English subjects for all. That's for the students, that's for the candidates, that's for the teachers, that's for all. That subject never separate itself and never divide itself into different parts. You know that most of the candidates are of the view that they think that this is only for the CCE, us in Public Service Commission. No, this is not for us. Or even this is for the students of 10th class. This is even for the students of FA, or graduate students, or MA students, for all. You do not think that this thing is for them and this thing is for them. No, that's your thinking, that's your view towards the things. When this chapter occurs in the CCE exams or screening test or in Public Service Commission exam, paper 1, I'm teaching about paper 1. I'm teaching about paper 1. What is the paper? Composition and précis. Composition and précis. I'm talking about composition and précis. Now I'm teaching about composition only. Then I will turn my attention towards the précis. That what is the précis? But at this time, I'm only teaching about the composition. That what is the composition? And in the composition, all these come in the composition. 8 parts of speech, 8 words of speech, sentences, active, passive, narration. These all things come in the composition. Paragraph writing. Now, candidates are asked to give the synonyms of the following words. This question occurs in the CCE exams or SPCE exams, and where students are, or where the candidates are asked to give the synonyms of the following words.
There might be 5 words or more than the 5 words. But this chapter contains how many marks? I think that 10 marks. It contains 10 marks for the students, for the candidates who they are aspiring to sit in the exam of CCE or SPCS. So, how to solve this type of question? How to solve this type of questions? Because you are given the 4 options, A, B, C, D. You are given the 4 options and you are asked to select one of them that must have the same meaning, the word that you are asked to solve. ये जो एग्ज़ाम है CCE का स्क्रीनिंग टेस्ट हो या जो ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम, इसमें कैंडिडेट्स को सिनोनिम्स हल करने के लिए बोला जाता है। यहाँ ये तो 5 वर्ड्स होते हैं या कभी कभी तो 10 वर्ड्स भी दे देते हैं। तो कैंडिडेट्स को कहते हैं कि ये जो गिवन ऑप्शंस है आपके पास जो चॉइसेस है, 4 वर्ड्स आपको चॉइसेस में दिए गए हैं, वो कहते हैं कि इस वर्ड की जो सेम मीनिंग हो इनमें से किसी एक की, तो वो आप इससे मिलाएं, वो सिलेक्ट करो, वो सिलेक्ट करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ synonyms. What are synonyms? Synonym is a word or a group of words that has the same and exact meaning. That has the same and exact meaning, and that's likely to be the same in meaning. Sometimes it has the same meaning, but sometimes it is likely to be the same and meaning. It is likely to be the same in meaning. कभी कभार तो ऐसा होता है कि इसकी माना वही होती है जो वर्ड की माना पूछी जाती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि मिलती जुलती भी है। कभी कभी तो आपके वर्ड्स ऐसे भी दिए जाते हैं जिनकी मीनिंग जो है सारों की मिलती है, पर मगर जो करेक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। आपको कौन सा वर्ड सिलेक्ट करना होता है जो सही है। पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड दिया गया है इसकी माना क्या है। बाद में हमें पता होना चाहिए कि ये जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनकी मीनिंग क्या है। जब आपको सारों की मीनिंग आ जाएगी तो आप बिना किसी हिचक के, बिना किसी ट्रबल के, बिना किसी परेशानी के आप इनको सॉल्व कर लोगे और 10 मार्क्स आपके जेब में आ जाएंगी। तो ये सबके लिए है, जो पुलिस में टेस्ट देता है उसके लिए भी है, जो टीचर के लिए टेस्ट देता है, प्रिपेयर करता है, उसके लिए भी है, जो डिफरेंट all type of exams, that's same. For all type of exams this would be the same. English would be the same because English is the subject, and subject would be the same. Either you sit in the exam of metric, or you sit in the exam of intermediate, or you sit in the exam of graduation. But passive active narration and the sentences and 8 words of speech would be the same. There would be no difference. So let's understand about their real meanings. First I will write the meaning of the words, then I will ask from you that which one has the same and exact meaning. First, abet means to make something lessen, intense. किसी चीज की शिद्दत को कम करना, तो मेक समथिंग लेसन इंटेंस। किसी चीज की शिद्दत जो है उसको कम करना, अबेट की माने होगी। अबेट की माने होगी किसी चीज की शिद्दत को कम करना, किसी चीज की जो गहराई है उसमें जो शिद्दत है उसको कम करना। लेसन की माना भी क्या है, तो लेस इंटेंस ऑफ समथिंग,
intense of something. Essence means, what is the meaning of essence? Indispensable quality of something that differs it from others. Boast means to talk about one's own achievements. Obvious means self-evident or clear. पहले मैं इनकी उर्दू में तशरीह करता चलूं कि अबेट की माना है किसी चीज की शिद्दत में कमी लाना, किसी चीज की शिद्दत में कमी लाना, इसको कहते हैं अबेट। और लेसन की माना है किसी चीज की शिद्दत में कमी लाना। एसेंस की माना है किसी कोई अहम खूबी हो आप में, किसी चीज की कोई अहम खूबी या कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको दूसरों से अलहदा करे, कोई ऐसी खूबी या कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको दूसरों से अलग करे। और बोस्ट मीन्स टू टॉक अबाउट वंस ऑन अचीवमेंट्स, खुद के बारे में खुद की तारीफ करना, खुद की बटारे लगाना, खुद की डारे लगाना कि मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, खुद की तारीफ करना, खुद के बारे में बात करना, खुद के अचीवमेंट्स बताना, तो इसको कहते हैं बोस्ट। ऑब्वियस कहते हैं कोई चीज़ साफ हो, साफ नजर आ रही हो, सेल्फ एविडेंट हो। तो आपको पता है कौन सा वर्ड इस वर्ड की माने से मिलता है, तो आप खुद बोलोगे कि लेसन इसकी माने से मिलता है। जो सही सिनोनिम्स अबेट वर्ड का है वो है लेसन। ये तीनों नहीं है, ये तीनों नहीं है क्योंकि इनकी माने इससे नहीं मिलती, क्योंकि इनकी माने इससे नहीं मिलती, इसलिए हम इन तीनों ऑप्शंस को रिजेक्ट करेंगे और इसको हम सिलेक्ट करेंगे। दूसरे वर्ड पे आते हैं एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मतलब है टू शॉर्टन समथिंग, किसी चीज को छोटा करना, किसी चीज को छोटा करना एब्रिविएशन कहलाता है। टू मेक समथिंग शॉर्ट, टू शॉर्टन समथिंग, किसी चीज को छोटा करना। पैराफ्रेज की माने क्या है? पैराफ्रेज की माना है रीवर्डिंग करना, रीवर्डिंग टू मेक मीनिंग ऑफ समथिंग क्लियर। समथिंग क्लियर, किसी चीज की माने को क्लियर करने के लिए पैराफ्रेज कहते हैं। जो लफ्ज़ों में आपको दिया गया है, जो लफ्ज़ आपको दिए गए हैं, उन लफ्ज़ों को हटा के अपने लफ्ज़ डालना, छेड़छाड़ करना उन लफ्ज़ों में। जो लफ्ज़ दिए गए हैं पैराग्राफ में उनको हटा के अपने लफ्ज़ डालना, उन लफ्ज़ों को हटा के किसी दूसरी जगह पे रख के वही मीनिंग निकालना जो है, और उससे भी ज़्यादा क्लियर मीनिंग निकालने को कहते हैं पैराफ्रेजिंग। और लॉन्ग फॉर्म टू मेक समथिंग लॉन्ग, मीडियम फॉर्म टू मेक समथिंग नाइदर लॉन्ग नाइदर शॉर्ट। शॉर्ट फॉर्म मीन्स शॉर्ट फॉर्म टू शॉर्टन समथिंग। सो आप मुझे बताएंगे कि एब्रिविएशन से कौन सी माना वर्ड की मिलती है, तो आप बोलोगे कि शॉर्ट फॉर्म। ये तीनों नहीं मिलते, इसलिए ये हो गया इसका, ये क्या हो गया इसका synonyms that has the same meaning, that has the same meaning. Now come to this etiquette. What is the meaning of etiquette? etiquette की माने है to renounce
रिनाउंस वंस थ्रोन, अपनी बादशाहत को खत्म करना। और इसकी दूसरी माने है टू फाइल, टू फुलफिल, fail to fulfill one's responsibilities, अपनी जिम्मेवारी को निभाने में नाकाम होना, जिम्मेवारी ना निभा पाना, अपनी बादशाहत को छोड़ना। तो हम आते हैं इनकी माने पे कि इन चारों ऑप्शन से किस वर्ड की माने इससे मिलती है। ट्रिक का माना है in act of deceiving, in act of deceiving or outwitting something, someone। किसी को धोखा देना, किसी के साथ चालाकी करना, किसी को धोखा देना, इसको कहते हैं ट्रिक। तो पता चला कि इसकी माने इससे नहीं मिलती। रीजन की माना पूछते हैं। रीजन की माना है जो रिनाउंस वंस थ्रोन, बादशाह छोड़ देना। अब चलते हैं हिरास के पास। तो वो क्या कहता है, टू मेक रिपीटेड अटैक्स ऑन एनिमी, अपने दुश्मन पे बार बार हमला करना, उसको डराना, अपने दुश्मन को बार बार हमले करके डराना। तो इसको कहते हैं हिरास, इसको कहते हैं हिरास। ये माने भी इससे नहीं मिलती। इसको कहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पर्स का माना है तकसीम करना या स्प्रेड करना, पखेरना या तकसीम करना। तो हमने देखा कि ये जो चारों हैं इसमें से जिसकी माने एटिकेट से मिलती है वो वर्ड है रिजाइन। तो एटिकेट का सही जो सिनोनिम्स होगा वो होगा रिजाइन। एटिकेट का सही सिनोनिम्स जो होगा वो होगा रिजाइन। चलते हैं दूसरे की तरफ, चौथे की तरफ चलते हैं। उसका माना है अबोट। अबोट किसको कहते हैं उसकी पहले माने जाने। अबोट कहते हैं प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रहने की जगह। अबोड कहते हैं रहने की जगह, ठिकाना। अबोड कहते हैं रहने की जगह को या ठिकाने को। तो हम आते हैं इधर पे। एजान का मतलब है टू मेक समथिंग ब्यूटीफुल, टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल, किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना। तो हमने देखा ये तो इसकी माने तो इससे नहीं मिलती। डिसलाइक मीन्स टू शो हेटर फॉर समथिंग, किसी चीज़ को पसंद नहीं करना। हेट का मकसद है नफरत करना, टू डिस्गस्ट, किसी चीज़ से डिस्कस करना, कराहत करना, लाइक नहीं करना। एडमायर का मतलब है एडमायर नहीं होगा इसमें, सॉरी, ड्वेलिंग प्लेस। तो ड्वेलिंग प्लेस का मतलब है अझा या शेल्टर, रहने की जगह, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो यहाँ पे जो लफ्ज आएगा अबोड के लिए वो होगी ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस होगी। अब आखिर में आ जाता है अबॉलिश,
अबालिश का मतलब है to put an end to something, put an end to something, किसी चीज को खत्म करना। तो put an end to something, put an end to something, हम यहाँ पे देखते हैं कंप्लीमेंट, कंप्लीट का क्या माना निकलता है? कंप्लीट का माना है having all necessary and appropriate parts, किसी चीज के सारे जरूरी चीजों का मौजूद होना। जो भी चीजें किसी चीज में पड़ती हैं तो उनका मौजूद होने को कहते हैं कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शादी या ब्याह पे जाते हो तो वहाँ पे जो दूल्हे वाले होते हैं या दुल्हन वाले, वो क्या करते हैं कि सारी चीज़ों का इंतजाम करते हैं। अगर सारी चीज़ें जो ज़रूरी थी, उधर पे नेसेसरी थी, वो सारी चीज़ें अगर वो अरेंज करते हैं सही नमूने से, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो इसको आप कहोगे कंप्लीट अरेंजमेंट। एंड डू अवे का मतलब है विद, डू अवे का मतलब विद है, इसका मतलब है तो पुट एन एंड टू समथिंग, तो पुट एन एंड टू समथिंग, किसी चीज को खत्म करना। तो हमने देखा ये, और इसका मतलब क्या है कैरी अवे का? टू लूज कंट्रोल, कोई चीज ज़ाब्ते से निकल जाए, किसी चीज पे कंट्रोल जो अपना है वो गवा देना, वो ना कर पाना, कोई चीज कंट्रोल से निकल जाए तो इसको कहते हैं कैरी अवे। और ये जो है सिंप्लीफाई का मतलब है टू मेक समथिंग सिंपल, टू मेक समथिंग सिंपल, किसी चीज को आसान बनाना, सादा बनाना, सिंपल करना। तो यहाँ हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड मिलता है, तो यहाँ पे मिलता है डू अवे विद, अबालिश से। तो ये सही सिनोनिम से अबालिश का, ये सही सिनोनिम से अबालिश का। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ये रहूँगा। कल इंशाल्लाह मैं ये जो सीसी के एग्ज़ाम है और ये जो SPCS के एग्ज़ाम है, इन पे भी तैयारी करवाऊँगा, ये सारे एग्ज़ाम पे तैयारी करवाऊँगा। और जितने सारे भी एग्ज़ाम्स हैं इंशाल्लाह इसमें सीरीज़ में हम आएंगे, तो सीरीज़ वाइज चीज़ों को हम करते चलेंगे। तो तब तक के लिए आप इजाज़त दें अपने दोस्त को। मैं टीचर तो हूँ नहीं, मैं तो ऐसे ही हूँ बस। ओके, गुड बाय।